Hello friends, welcome to the stream of commerce. So if you are entering in the field of commerce, the main subject is bookkeeping and accountancy. So for bookkeeping and accountancy, we must know what is the strategic plan. So let's start with strategic plan for 11th bookkeeping and accountancy. So if you are in BBA first year semester 2, even you must know how to understand bookkeeping and accountancy. So this is basically we are going to discuss strategic plan for understanding bookkeeping and accountancy. There are simple 3 tips. So which are 3 tips to understand bookkeeping and accountancy? Tip number 1, know your subject. Then how to study your subject and how to practice that subject. So know your subject, how to study the subject and how to practice the subject. These are basic 3 tips of bookkeeping and accountancy. Even the same strategy may be applicable to other subjects as well. क्योंकि सब्जेक्ट की शुरुआत करने से पहले व्हाट इज इंपॉर्टेंट, यू मस्ट नो योर सब्जेक्ट. वेन एवर यू इंटरेक्ट विद द पर्सन और whenever you want to interact with the person, whenever you want to mingle with the person, what do? क्या करते हो आप? You try to know that person. Same here, try to know the subject. जैसे आपको person को जानना है, in the same way यहाँ पे subject को जान लेना है. So know your subject means what? So let's discuss tip one by one. Know your subject. So when you want to know your subject, सबसे पहले every subject has theoretical part. Every subject has theory, and in 11th or even many exams there are objective questions asked on this theoretical part. So if once you understand the theory, it is easy to apply that theory. Yes, if once you understand the theory, it is easy to apply the theory. So second stage within practical. So what is practical? Practical means application of theory. So number of time स्टूडेंट्स इग्नोर कर देते थियोरेटिकल पार्ट. डोंट इग्नोर द थ्योरी. रट्टा मत मारो, थ्योरी अंडरस्टैंड करो. व्हाट डू मैं अंडरस्टैंडिंग थ्योरी मीन्स? ट्राई टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट, try to understand the terminologies. So there are basic concepts and terminologies. Try to understand that concept. Once you understand that concept, it will be easy to apply that concept and it will be easy to solve the subject practically. Clear? Formats. So in bookkeeping and accountancy there are standard sets, that is the format. There are standard sets. Initially you will not understand these standards, but just let me tell you which are the formats. Just like there are various formats. So look at this format. This is the format of accounting equation. So accounting equation ये topic जब आएगा then you will understand. So this is the format. So आप बोले सब format learn करना है, ये अपने आप learn होता है. So when you start solving that particular problem, ये format अपने आप learn हो जाते. Just you need pencil and scale. So if you respect bookkeeping and accountancy, you must carry pencil and scale. Ruler important है. ये फॉर्मेट है जर्नल एंट्री का, ये फॉर्मेट है लेजर का. सो आप बोले सर जर्नल एंट्री लेजर ये सब बाद में देखेंगे. जर्नल का फॉर्मेट, लेजर का फॉर्मेट, कैश बुक का फॉर्मेट. सो ऑल दीज आर फॉर्मेट्स. सो आप बोलेंगे अलग अलग फॉर्मेट्स अपने आप प्रैक्टिस हो जाएगी. सो डोंट वरी अबाउट द फॉर्मेट्स. सो इट इज क्लियर दैट वी हैव टू फॉलो सेट स्टैंडर्ड्स. रैंडमली हम आंसर्स नहीं लिख सकते. वेन एवर यू आर अप्लाइंग theory and practically you are solving the problems in practical bookkeeping और accountancy में standards formats follow करना essential है. Then speed. Two speeds are important. Thinking speed. Thinking speed कब बढ़ेगी? If your theory is conceptually clear, आपकी thinking speed बढ़ जाएगी. थिंकिंग स्पीड बढ़ेगी अगर आपका प्रैक्टिकल नॉलेज भी अच्छा, एप्लीकेशन है तो डेफिनेटली सॉल्विंग स्पीड भी बढ़ जाएगी. सो टू स्पीड्स आर इंपॉर्टेंट. क्योंकि 80 मार्क्स का पेपर अगर आपको कवर करना है, व्हाट एवर भी द मार्क्स अगर पेपर कवर करना है, यू आर थिंकिंग एंड योर सॉल्विंग स्पीड ये दोनों ज़्यादा चाहिए. और इसमें तीसरा भी स्पीड लगेगा जो सेपरेट लेते हैं. बिकॉज बुक कीपिंग अकाउंटेंसी नीड्स यस कैलकुलेशंस. व्हाट यू नीड? कैलकुलेशंस आर इसेंशियल. सो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ यस मैथमेटिकल कैलकुलेशंस है. यस अरिथमेटिक कैलकुलेशंस. सो अरिथमेटिक कैलकुलेशंस मतलब एडिशन, सब्ट्रैक्शन,
डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, मैक्सिमम परसेंटेज निकालने तक, नॉट मोर देन दैट। क्लियर है? सो अरिथमेटिक कैलकुलेशंस किस टाइप्स के आते हैं, चलो ये भी एग्जांपल में हम देख लेते हैं, क्योंकि इफ यू आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड, सो सिंपल है, कॉस्ट ऑफ द फ्रिज है, CGST 14% ऐड कर दिया, HGST 14% ऐड कर दिया है, नेट वैल्यू निकालिए, नेट वैल्यू पे हमने कैश डिस्काउंट दिया है 2% और वैल्यू रिकॉर्डेड। सो इस तरह से कैलकुलेशंस आते हैं। सो यू जस्ट नीड टू ऐड लेस परसेंटेज, नथिंग मोर देन दैट। वन मोर एग्जाम्पल इफ यू वांट टू प्रैक्टिस, चलो मेरे साथ प्रैक्टिस करो, ले लो हाथ में पेन पेंसिल और रफ नोटबुक या तो पेज, करो इसकी टोटल। क्या है टोटल? सिंपल है, ऑल 800 यहाँ पे आखिरी में आने वाला है। क्लियर है? 800 के बाद यहाँ पे आ रहा है 3 + 2 5, सो यहाँ पे 5 आ गया, यहाँ पे 800 आ गया। सो सिंपल है 3 2 5, 5 + 3 8, 8 + 4 यस 12, सो आ गई टोटल 1,25,800। सो इस तरह से आपको कैलकुलेशंस करने हैं। दीज आर अरिथमेटिक कैलकुलेशन। सो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स मिसकॉन्सेप्शन है कि सर बुक कीपिंग और अकाउंटेंसी मैथ्स है और हम मैथ्स को डर के साइंस छोड़ के कॉमर्स में आ रहे हैं। देर इज नो मैथ्स, दीज आर जस्ट अरिथमेटिक कैलकुलेशंस और सिंपल कैलकुलेशन से जो आप अप टू 4th स्टैंडर्ड पढ़ चुके हो। सो इसका मतलब उतनी ही लेवल का ये मैथमेटिक्स है। सो डोंट थिंक दैट देर इज अ टू मच ऑफ मैथमेटिक्स। यहाँ पे हमें डेरिवेटिव्स इंटीग्रेशन कुछ नहीं पढ़ना है, यहाँ पे हमें सिर्फ कैलकुलेशंस चाहिए और कैलकुलेशंस की स्पीड भी ज़्यादा चाहिए। वन मोर कर लो प्रैक्टिस, कोई इश्यू नहीं। कैलकुलेट द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स और यहाँ पे हम अमाउंट लिखेंगे। सन्ड्री डेटर, सन्ड्री मतलब सेवरल, 1,20,800। लेस बैड डेट्स, सो किसी ने बैड डेट्स कर दिए, सिर्फ लेस करने 800, सो 800 लेस करने के बाद कितना आएगा? यस 1,20,000। वेरी गुड। इसके ऊपर 5% RDD, सो 5% RDD 12 × 5, यस 12 5 6, यस 60, सो 6,000, सो 6,000, सो 6,000 चले गए, सो 1,14,000 अमाउंट है, 1,14,000। सो इस तरह से आपको कैलकुलेशंस करने। सो लगता है ये कैलकुलेशंस डिफिकल्ट है, दीज आर द सिंपल कैलकुलेशंस। 2% डिस्काउंट, इसके ऊपर 2%, सो इसके ऊपर 2% मतलब 228, सो कितना आएगा? यस 2280, सो 2,280, सो बची हुई अमाउंट कितनी है? कितनी? 1,11,000 और कितनी? 720, यस 1,11,720 आ गया ध्यान में। सो दीज आर कैलकुलेशंस। सो ये हो गई हमारी नो योर सब्जेक्ट। सो नो योर सब्जेक्ट में हमने क्या नो किया? सबसे पहले थियरी ऑफ दैट सब्जेक्ट, application of that theory, that is your practical, then speed में thinking speed, solving speed, and fourth yes speed of calculation. How to study bookkeeping and accountancy. So bookkeeping और accountancy सबसे पहले एक रजिस्टर कर लो 200 पेजेस A4 साइज। What you need a register notebook, टेंटेटिवली 200 पेजेस, हैंडल करने के लिए आसान हो जाएगा। A4 साइज, छोटी नोटबुक मत यूज करो, A4 साइज, क्योंकि आपने देखा देर आर फॉर्मेट्स ड्रॉ करने, हैंड राइटिंग लेजिबल और अगर अच्छी तरह से आपको रीडेबल चाहिए तो यू नीड 200 पेजेस A4 साइज रजिस्टर्ड नोटबुक। उसके बाद बुक्स, महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड का जो भी टेक्स्ट बुक है तो आपके सिलेबस में वॉट एवर द बुक इज प्रिस्क्राइब, ट्राई टू परचेज दैट बुक्स। ये बुक्स क्यों है? क्योंकि नंबर ऑफ क्वेश्चंस आर बेस्ड ऑन बुक्स। भले ही नेम अलग आएगा, अमाउंट अलग आएगी, लेकिन प्रॉब्लम वन एंड द सेम ही आते हैं, एडजस्टमेंट सेम आती है, ट्रांजैक्शन सेम आते हैं। तो ये एडजस्टमेंट ट्रांजैक्शन बाद में समझेगा, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट यू मस्ट हैव बुक्स। आप बोलेंगे पार्ट 2 3 क्या है? आपको हम हमारे कोचिंग क्लासेस में 3 पार्ट्स बुक्स देते हैं। दीज बुक्स आर कस्टमाइज, जो हमने खुद बनाए आफ्टर R&D। सो ये 3 पार्ट्स हम प्रोवाइड करते हैं। ये 3 पार्ट्स में टेक्स्ट बुक 100% कवर है। सो हमारे स्टूडेंट्स को टेक्स्ट बुक की जरूरत भी नहीं आती। देन यू नीड क्लासरूम, यस पार्टिसिपेशन। क्लासरूम पार्टिसिपेशन इज एसेंशियल। आप कहाँ पे भी क्लास लगाओ, योर
पार्टिसिपेशन। आप बोले सर हम क्लास में लगा रहे, आपको कॉलेज में तो पार्टिसिपेट करो। सो क्लासरूम में आपका एक्टिव पार्टिसिपेशन, व्हाट डू यू नो एक्टिव पार्टिसिपेशन? इफ योर टीचर इज आस्किंग यू समथिंग, इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू आंसर प्रॉम्प्टली। भले ट्राई करो, गलत हो जाएगा क्या होगा, लेकिन क्लासरूम एक्टिव पार्टिसिपेशन से क्या होगा, यू विल अंडरस्टैंड दैट सब्जेक्ट, उसकी डेप्थ समझ में आएगी, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। सो अगर आप मेरे क्लासरूम में तो एक्टिव पार्टिसिपेशन अपने आप हो जाता है। सो एक्टिव पार्टिसिपेशन इज इसेंशियल। और ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव्स। ट्राई टू अंडरस्टैंड ऑब्जेक्टिव्स। ऑब्जेक्टिव्स के आंसर्स दे पाना, इसका मतलब आपकी थ्योरी बहुत अच्छी है और आपको प्रैक्टिकल अपने आप आ जाएगा। और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस एग्जाम में आती भी है सेपरेटली। कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंडिंग समझ में आती है व्हेन यू सॉल्व द ऑब्जेक्टिव्स। समरी, व्हाट डू यू समरी? व्हेन योर टीचर इज टीचिंग यू, आप पॉइंट्स जो है रफ पॉइंट्स पेंसिल से पेन से पॉइंट्स निकालते चलो। वो समरी मतलब खुद के नोट्स बनाओ। ये समरी आपको अंडर, जैसे मैंने कहा कि यस सर ने आज 3 टिप्स बताया। पहले स्टेप में क्या बताया? नो योर सब्जेक्ट। नो योर सब्जेक्ट में सर ने क्या बताया? यस यार थ्योरी, थ्योरी के बाद सर ने क्या कहा? प्रैक्टिकल, प्रैक्टिकल के बाद क्या? स्पीड। सो ये सब। उसके बाद हाउ टू स्टडी। हाउ टू स्टडी में सर ने कहा कि एक नोटबुक बनानी है, आपको टेक्स्ट बुक चाहिए, क्लासरूम में एक्टिव पार्टिसिपेशन करना है। एग्जैक्टली उसके बाद ऑब्जेक्टिव सॉल्व करने और समरी बनानी। क्लियर है? और उसके बाद आपको स्टडी मतलब ये सेल्फ नोट्स हो जाएगी आपकी समरी। एंड हाउ टू प्रैक्टिस, सबसे इंपॉर्टेंट। सो प्रैक्टिस के लिए आपको क्या करना है? स्टेप नंबर 1, सॉल्विंग विदाउट फॉर्मेट। मैंने आपको जो फॉर्मेट्स दिखाए, जर्नल के फॉर्मेट्स, स्केच बुक के फॉर्मेट्स, लेजर के फॉर्मेट, सो शुरू में जस्ट आपको स्पीड चेक करना है, सॉल्विंग विदाउट फॉर्मेट। इसका बेनिफिट क्या होगा? देयर आर 2 बेनिफिट्स, टू एंश्योर द स्पीड एंड टू एंश्योर योर अंडरस्टैंडिंग। स्पीड और अंडरस्टैंडिंग दोनों आपकी बढ़ेगी विदाउट फॉर्मेट, जस्ट फॉर प्रैक्टिस। एंड देन सॉल्विंग विथ फॉर्मेट। सॉल्विंग विथ फॉर्मेट से यू विल बी परफेक्ट इन एप्लीकेशन and it will ensure your perfection. So perfection आ जाएगा if you are solving with well drawn formats. Then solving classroom problems. Suppose teacher has taught you 2 problems in the classroom. दोनों प्रॉब्लम्स टीचर ने सॉल्व कर दिए, थर्ड प्रॉब्लम आपने सॉल्व किया यही क्लासरूम पे। घर जाके तीनों प्रॉब्लम्स इंडिपेंडेंटली सॉल्व करने, बाद में होमवर्क करना है। इट विल एंश्योर योर प्रैक्टिस, इट विल एंश्योर योर प्रैक्टिस एज वेल एज अंडरस्टैंडिंग। आपकी अंडरस्टैंडिंग और बढ़ जाएगी विदाउट लुकिंग एट द आंसर। आपको खुद होके सॉल्व करना है वॉट एवर इज टॉट इन द क्लासरूम। क्लियर है? और आगे की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको सॉल्विंग होमवर्क प्रॉब्लम। डायरेक्टली नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बोलते हैं सर होमवर्क प्रॉब्लम ही हम सॉल्व नहीं करते, आप तो क्लासरूम बता रहे। इफ यू वांट टू एंश्योर योर अंडरस्टैंडिंग, ये कंपल्सरी है। क्योंकि क्लासरूम में क्या होता है, वी जस्ट कॉपी पेस्ट, कॉपी पेस्ट। सो डोंट डू कॉपी पेस्ट, ट्राई टू अंडरस्टैंड। खुद का दिमाग लगाओ कि सर ने कौन सी मेथड फॉलो की थी, क्या क्या कैलकुलेशंस बताए थे, सो गो विथ दैट कैलकुलेशंस। क्लियर है? इससे क्या होगा? इट विल एंश्योर अंडरस्टैंडिंग। यहां पे तो आप सिर्फ चेक कर रहे हो, यहां पे आपकी अंडरस्टैंडिंग एंश्योर, यस आपको गारंटी मिल जाएगी ये टॉपिक मेरा पूरा हो गया। एंड आपको सॉल्विंग टेस्ट पेपर्स, वेन एवर पर्टिकुलर यूनिट और पर्टिकुलर टॉपिक विल बी कंप्लीटेड, देन आपको एक टेस्ट ली जाएगी। अगर टेस्ट नहीं ली जाती तो कॉलेजेस में टेस्ट हो रही है, टेस्ट पेपर मिल जाएंगे आपको। टेस्ट पेपर मार्केट में से या तो सीनियर स्टूडेंट से ले लो और ये टेस्ट पेपर सॉल्व करने की कोशिश करो। ये टेस्ट से क्या होगा, आपको समझ में आएगा कि अंडरस्टैंडिंग कितनी की होता है। क्या है क्लासरूम में नॉर्मली जो फॉर्मेट पढ़ाया जाएगा वही फॉर्मेट क्लासरूम और होमवर्क में होगा, इसका मतलब आपको ऑलरेडी पता है। लेकिन जब आप टेस्ट सॉल्व करते हो वहाँ पे अलग अलग क्वेश्चंस कंबाइन होते हैं। सो इट विल इंश्योर होलिस्टिक अंडरस्टैंडिंग। कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग तभी होगी जब आप टेस्ट पेपर सॉल्व करोगे। अगर आपको टेस्ट पेपर में आउट ऑफ मिलते हैं, आपको ऑस्कर मिलने वाला है, गोल्ड मेडल मिलने वाला है? बिल्कुल नहीं। अगर आप फेल होते हो या तो कम मार्क्स मिलते हैं, हैंग टिल डेथ की पनिशमेंट होने वाली, नो पनिशमेंट। सो एटलीस्ट समझ में आएगा हम कितने पानी में हैं। सो ये समझने के लिए इंपॉर्टेंट है सॉल्विंग टेस्ट पेपर्स टाइम टू टाइम विथ वेल प्रिपरेशन। सो ये रहा हाउ टू फेस बुक कीपिंग एंड accountancy. If you want to continue, so you have to please subscribe the channel, hit the like button. ऐसे वीडियो लेके हम आते रहेंगे. So see you in the next video. तब तक bye bye, take care.